Hello and welcome back. My name is Hasib. I'm an operation assistant of PFMS. This video is regarding opening balance and its modification on PFMS. Opening balance is one of the most important feature of PFMS for the implementation of an E10 DBT module. It can be simply defined as an unspent amount that is currently available in the bank account of an agency that's being registered on PFMS. जब आप किसी एजेंसी को रजिस्टर करते हैं किसी स्कीम के लिए, आप वहाँ पे एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं जो यूजुअली आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है. अगर उस बैंक अकाउंट में आपके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल होते हैं, दोज फंड्स आर टू बी शोन एज एन ओपनिंग बैलेंस फॉर दैट स्कीम. बिकॉज उस बैलेंस का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता या उसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं होता है PFMS के लिए. सो PFMS पे वो आपका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड होता है. सो एनी अनस्पेंट बैलेंस दैट्स अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट before the registration of your agency, before the registration of that bank account on PFMS, आप वो amount as an opening balance show करते हैं. Now that amount can be available in component wise or in bulk. So you have to first decide जो आपके पास currently unspent amount है, if that's in the bulk, can be utilized in any component. So that amount can be also recorded as in bulk. बट अगर वो आपके पास कंपोनेंट वाइज अवेलेबल है, देन PFMS पे उसका फीचर अवेलेबल है, आप कंपोनेंट वाइज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वो ओपनिंग बैलेंस. नाउ दिस ओपनिंग बैलेंस इज अ मैनुअल एंट्री विच द एजेंसी यूजर्स हैव टू परफॉर्म. अगर आपके पास अनस्पेंट बैलेंस है, इफ यू डोंट हैव एनी अनस्पेंट बैलेंस, देन ओपनिंग बैलेंस एंट्री डजंट नीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन PFMS. जब आप स्टार्ट करते हैं E10 DBT मॉड्यूल, उसके बाद जो आपके फंड्स होते हैं वो यूजुअली आपको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम योर फंडिंग एजेंसी और फ्रॉम योर फंडिंग अथॉरिटी. वो फंड्स आप रिसीव करते हैं PFMS पे, एंड वंस दोज फंड्स आर रिसीव्ड, दोज फंड्स गेट ऑटोमेटिकली एडेड विद द करंट अवेलेबल अमाउंट ऑन इन योर एजेंसी, एंड दैट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड वाया E10 DBT मॉड्यूल. So basically, opening balance should always remain a one-time entry. This is only for the unspent available amount before the registration of an agency. But after the registration of an agency, when the agency starts using the E10 DBT module, all the funds for the agency are to be transferred via the PFMS route, and those funds are to be received as well by that agency. Those funds does not require to be recorded as an opening balance. They will automatically get added with the current opening balance of the agency. So opening balance आप कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं. First of all, you will log in with your data operator account where you can visit the My Fund and Opening Balance option. जब आप ओपनिंग बैलेंस का पेज ओपन करते हैं, वहाँ पे ऐड ओपनिंग बैलेंस का आपको ऑप्शन होता है, जिस पे आप क्लिक करके ऐड न्यू ओपनिंग बैलेंस का पेज ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स यानी कि आप पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे, सेम स्कीम जिसका आपके पास अनस्पेंट बैलेंस अमाउंट होता है, एंड देन यू विल सेलेक्ट योर बैंक अकाउंट, एक्चुअल बैंक अकाउंट, और वही बैंक अकाउंट जिसका आपके पास रिकॉर्ड होता है दैट दिस इज द बैंक अकाउंट वेयर द अनस्पेंट बैलेंस इज, एंड द अकाउंट दैट्स बीइंग रजिस्टर्ड ऑन PFMS. After selecting the scheme and the bank account, you will select the amount that's currently available to you. आप वो amount वहाँ पे mention करेंगे, and if the amount is available in bulk or in component wise, there is a transaction type that you need to select. अगर आपके पास वो bulk में, तो आप bulk पे ही click करेंगे, select करेंगे आप bulk option को. अगर आपके पास वो amount component wise है, तो आप component wise वो define कर सकते हैं, and then after filling all the details there, आप वो submit करते हैं, and the record goes to the data approver's account where he can log in and go to the same option in My Funds opening balance and browse for this entry. And अगर आपके पास ये first entry है opening balance की, then the approval remains within the agency. आपके ही एजेंसी का corresponding जो data approver होता है, वही आपका opening balance का first entry approve करते हैं. Once the entry has been approved, आपका balance show होता है as an available balance for that agency, for that scheme. But एनी टाइम अगर आप ओपनिंग बैलेंस अपडेट करते हैं या एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, उस केस में फिर आपका 2 लेवल अप्रूवल रिक्वायर होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कब एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस को? इफ देयर इज एनी मिसमैच क्रिएटेड बिटवीन द अवेलेबल अमाउंट in the bank account and the amount that's being reflected on PFMS for the agency, अगर उसमें आपका कभी mismatch create होता है, then to rectify the things you can edit or update or modify your opening balance to adjust the available amount to you. Now for any modification,
जब आप पहली कोई एंट्री करते हैं दैट नीड्स ओनली द अप्रूवल ऑफ योर ओन डेटा अप्रूवर, बट जब आप ओपनिंग बैलेंस को किसी टाइम मॉडिफाई करते हैं या एडिट करते हैं उस केस में आपका 2 लेवल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। एक तो आपके अपने एजेंसी का अपना डेटा अप्रूवर अप्रूव करते हैं उस एंट्री को, उसके बाद वो फॉरवर्ड हो जाता है टू द अप्रूवर ऑफ योर फंडिंग एजेंसी। बट अगर आपकी एजेंसी फर्स्ट लेवल पे है देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम, अगर आप स्पॉन्सर्ड स्कीम के केस में फर्स्ट लेवल पे हैं और आप अपनी ओपनिंग बैलेंस एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं उस केस में आपका अप्रूवल चला जाता है आपके स्टेट स्कीम मैनेजर के पास। बट अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट लेवल पे हैं आप, अगर आप उस टाइम ओपनिंग बैलेंस को एडिट करते हैं मॉडिफाई करते हैं देन द अप्रूवल गोज टू योर प्रोग्राम डिवीजन। So accordingly you have to notify your funding agencies or funding authorities for the approval of that opening balance that's being modified on PFMS. Now this is the page where you can update your opening balance or record your opening balance for your scheme. Now let me show you the same on the PFMS website as well. Like I already said, ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए या फाइल करने के लिए आपको डेटा ऑपरेटर के अकाउंट के थ्रू लॉग इन करना है और ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप जाएंगे माई फंड्स इन ओपनिंग बैलेंस पेज, क्लिक ऑन दैट, आपका ओपनिंग बैलेंस मैनेज पेज ओपन हो जाएगा एंड while scrolling below you can see an icon right here as an add opening balance. After clicking on add opening balance, a page will be opened up for you as bulk opening balance add. यहाँ पे आप अपनी ओपनिंग बैलेंस को एडिट कर सकते हैं या फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री क्रिएट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को शो कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो वो भी आप यहीं पे करेंगे। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट योर स्कीम प्रॉपरली, जिस स्कीम का आपके पास अनस्पेंट अमाउंट होगा या जिस स्कीम का अमाउंट आपको एडजस्ट करना है वो स्कीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसके साथ आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट करेंगे। इफ़ इट्स मॉडिफिकेशन एंट्री फॉर यू, आपका पहला वाला अमाउंट जो आपने ओपनिंग बैलेंस शो किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा एंड अगर आपकी पहली एंट्री है ओपनिंग बैलेंस की और इससे पहले आपने कोई भी फंड्स रिसीव नहीं किए हैं PFMS में तो यहाँ पे आपका अवेलेबल अमाउंट 0 शो होगा। सो फर्स्ट टाइम ओपनिंग बैलेंस शो करने के लिए आपके पास जितना अनस्पेंट अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मॉडिफिकेशन के केस में आप पहले डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे अपने बैंक बैलेंस का और यहाँ पे जो आपका बैलेंस शो हो रहा है आप पहले स्टेटमेंट लेंगे बैंक से, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक्चुअल में कितना अमाउंट है स्कीम का और आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या अमाउंट शो हो रहा है। इस अमाउंट में और बैंक बैलेंस अमाउंट में आप डिफरेंस पहले मेजर करेंगे कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, वो डिफरेंस अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। Okay, after mentioning the difference amount in here for the modification entry, अगर आप पहली एंट्री कर रहे हैं तो आप एक्चुअल अमाउंट जो आपका आप उस केस में भी पहले बैंक से स्टेटमेंट फेच करेंगे। स्टेटमेंट में जितना आपके पास स्कीम का अवेलेबल अमाउंट होगा वही अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन अगर आपकी फर्स्ट टाइम एंट्री है ओपनिंग बैलेंस की देन यू विल सेलेक्ट द रीजन हियर एज ए स्टार्ट ऑफ ईट एंड DBT मॉड्यूल। बट अगर आप एडिट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रॉपर रीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो बैलेंस मेंशन कर रहे हैं ये मॉडिफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेटलमेंट ऑफ रॉन्ग ओपनिंग बैलेंस एंट्री अर्लियर मेड या आप एडजस्टमेंट एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप डिसाइड कर लेंगे अपने एंड से। एंड ट्रांजैक्शन टाइप में जो हमने आपको पहले ही बता दिया, जो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट ओपनिंग बैलेंस कैन बी इन बल्क और कंपोनेंट वाइज। सो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अगर आप ये अमाउंट बल्क में दिखा रहे हैं यहाँ पे तो ये अमाउंट आप किसी भी कंपोनेंट में आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर आप ये अमाउंट कंपोनेंट वाइज डिफाइन करते हैं देन दिस अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ओनली दोज कंपोनेंट्स जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर आप कंपोनेंट वाइज जा रहे हैं देन यू विल हैव टू सिलेक्ट द कंपोनेंट वाइज ऑप्शन हियर और उसके बाद आपके स्कीम कंपोनेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं किस कंपोनेंट में आपके पास करंटली अनस्पेंट बैलेंस है। तो अकॉर्डिंगली आप पहले कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, इस कंपोनेंट में आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें 5000 है एंड यू विल ऐड दिस अमाउंट हियर एंड सिमिलरली आपके पास अगर और कोई कंपोनेंट है तो वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आप नेक्स्ट कंपोनेंट आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास इस कंपोनेंट में जो अमाउंट अनस्पेंट है वो आपका
70,000 है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करके ऐड करेंगे। तो इसी तरह आपका यहाँ पे नीचे लिस्ट क्रिएट होगा कि आपका जो अनस्पेंट अवेलेबल अमाउंट है वो आपका किस किस कंपोनेंट में है। बट इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट कंपोनेंट वाइज, अगर वो बल्क में ही है तो आप कंपोनेंट वाइज यहाँ पे ही नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्टली बल्क में वो अमाउंट अपलोड करेंगे। बिकॉज फर्स्ट कंफर्म फ्रॉम योर डिपार्टमेंट कि आपका जो अनस्पेंट अवेलेबल अमाउंट है वो आपका कंपोनेंट वाइज है या बल्क में है। बिकॉज कंपोनेंट वाइज अमाउंट अगर आप शो कर रहे हैं देन दिस अमाउंट कैन बी ओनली यूटिलाइज फॉर दिस कंपोनेंट। बट अगर आप बल्क में अमाउंट शो कर रहे हैं तो उस केस में आप वो अमाउंट किसी भी कंपोनेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। Now there is a most important option here is reversal entry. First let me tell you the two different things here. अगर आपका अवेलेबल अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू द बैंक बैलेंस, उस केस में आप पहले डिफरेंस मेजर करते हैं। आपका जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो माइनस करने के लिए आप रिवर्सल एंट्री पे टिक करते हैं। जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो जो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो आपके अवेलेबल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो जितना आपका बच जाएगा वो आपका एक्चुअल में फिर एजेंसी में शो होगा फॉर द एक्सपेंडिचर। दूसरा केस है अगर आपका यहाँ पे जो अवेलेबल अमाउंट है दैट अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट दैट्स अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस से कम है जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। उस केस में आप भी पहले डिफरेंस मेजर करेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट आपका आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बेसिकली आपका मोटिव रहेगा कि आप ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करना चाहेंगे। तो ऐड के केस में आप यहाँ पे रिवर्सल पे टिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करेंगे डिफरेंस अमाउंट और यहाँ पे आपका अवेलेबल अमाउंट शो होगा। वंस यू क्लिक ऑन द सेव, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट विल गेट एडेड और जो आपका सम आएगा वो आपका अवेलेबल अमाउंट बन जाएगा फॉर योर एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईट एंड डीबीडी मॉड्यूल। नाउ आप यहाँ पे सेव करते हैं। Now the notification comes that opening balance has been saved successfully. अभी ये एंट्री सिर्फ सेव हुई है। दिस नीड्स एन अप्रूवल ऑल्सो। अप्रूव करने के लिए आप पहले डेटा अप्रूवर का लॉगिन लेंगे और आप डेटा अप्रूवर को इन्फॉर्म करेंगे दैट वी हैव सबमिटेड द ओपनिंग बैलेंस एंट्री फ्रॉम द डेटा ऑपरेटर्स अकाउंट। और आप ये एंट्री फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं फ्रॉम द सेम ऑप्शन माई फंड्स ओपनिंग बैलेंस। जो आपने रिसेंटली कोई एंट्री की है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड यू कैन, अगर आप मल्टीपल स्कीम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो आप स्कीम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की हमने अभी एंट्री की थी एंड हम बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो नीचे जब आप सर्च करेंगे तो इस स्कीम की जितनी भी आपकी ओपनिंग बैलेंस एंट्रीज हुई है वो आपको यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ पे जो हमने रिसेंटली अभी एंट्री की थी वो यहाँ पे नीचे है सबसे लास्ट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अमाउंट ये सिलेक्ट किया है और हमारी तरफ से सबमिट हो चुका है और हमने ये रीज़न सिलेक्ट किया था। और रिवर्सल नहीं करना है इसलिए रिवर्सल पे फॉल्स है। अगर हमने रिवर्सल को ट्रू कर दिया यानी कि वहाँ पे टिक किया होगा तो दिस अमाउंट विल गेट सबट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट। बट हम ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम इस रिवर्सल को टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा। सो वंस द एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड यू विल हैव टू लॉग इन विथ योर डेटा अप्रूवर अकाउंट। Now once the data approval login has been done, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना एजेंसी टाइप, यूज़र टाइप। तो जब आप श्योर हैं कि आपने DA के अकाउंट से लॉगिन किया है then you will have to visit the same option my funds opening balance और यहाँ पे आप फिर से वो एंट्री ब्राउज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दैट एंट्री विच यू कैन ऑल्सो फिल्टर हियर। आप यहाँ पे अपना वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे और वही बैंक अकाउंट जिसके लिए आपने एंट्री सबमिट की थी डेटा ऑपरेटर के अकाउंट से और आप सर्च करेंगे तो जो आपकी एंट्रीज वहाँ से सबमिट हुई है डेटा ऑपरेटर के अकाउंट से तो वो एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एंट्री को ओपन करने के लिए आप स्कीम कंपोनेंट में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जो कि आपका हाइपर लिंक्ड होता है और यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपके डेटा ऑपरेटर ने स्कीम कौन सी सिलेक्ट की थी और डेटा ऑपरेटर ने कितना ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया है। एंड वंस ऑल द थिंग्स आर करेक्ट फॉर यू, अगर सारी डिटेल करेक्ट है देन द डेटा अप्रूवर कैन अप्रूव दिस फाइल राइट हियर एंड पुट इन द रिमार्क्स। You can put the remarks according to you and after the remarks are being entered you have to click on the confirm here.
As I already said, if it's an modification entry, अगर आप opening balance को modify कर रहे हैं या आप edit कर रहे हैं, उस केस में आप पहले अपने DA के अकाउंट से अप्रूव करेंगे, and once your own corresponding agency DA has approved this entry, the request gets forwarded to your funding authority. जब आप कोई फर्स्ट टाइम जो आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं उसमें उस केस में आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं होता है, उस केस में डायरेक्टली आपका अपने DA के अकाउंट से ही अप्रूव होता है. बट अगर आप सेकंड टाइम कोई एंट्री करते हैं, सेकंड टाइम एंट्री करने के लिए आपका रिक्वेस्ट अपने DA से फॉरवर्ड होता है आपके फंडिंग एजेंसी को. सो अगर आपके ऊपर कोई फंडिंग एजेंसी है, यू हैव टू नोटिफाई यूर फंडिंग एजेंसी. आप उनको नोटिफाई कर सकते हैं दैट यू हैव अप्रूव्ड एट योर लेवल द ओपनिंग बैलेंस एंट्री. नाउ इट नीड्स एन अप्रूवल फ्रॉम योर साइड. सो वो अपना लॉगिन करके, अपने डेटा अप्रूवल का लॉगिन करके आपकी एंट्री को अप्रूव कर सकते हैं. बट अगर आपकी एजेंसी फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट लेवल के केस में अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी का ओपनिंग बैलेंस आप अपडेट कर रहे हैं, तो आपका अप्रूवल जाएगा आपके स्टेट स्कीम मैनेजर के पास, तो आपको उनका लॉगिन आईडी लेना है. बट अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस केस में आपका अप्रूवल आपके PD को चला जाता है. सो यू हैव टू इन्फॉर्म योर प्रोग्राम डिवीजन टू गेट दिस एंट्री अप्रूव्ड फॉर यू. हमारे केस में हमारा अप्रूवल फॉरवर्ड हुआ है टू द स्टेट स्कीम मैनेजर. सो वील हैव टू लॉग इन विद द स्टेट स्कीम मैनेजर ऑफ दिस स्कीम, and where he can go to the same option, my funds opening balance. यहाँ पे जो भी ओपनिंग बैलेंस की रिक्वेस्ट उनको फॉरवर्ड हुई होंगी वो यहाँ पे देख सकते हैं, और जो हमारी तरफ से फॉरवर्ड हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट पे. एंड यहाँ पे भी सेम ऑप्शन में हाइपर लिंक्ड होता है हमारा बल्क, तो बल्क पे क्लिक करके वो एंट्री को ओपन कर सकते हैं. और आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स, इफ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, देन ही कैन go for the approval of this entry. After putting in the remarks, he can just confirm this entry. Now here it shows that record has been approved successfully. After this opening balance entry gets approved from the both levels, now agency can check the available amount that will be adjusted according to this entry. So that's all for the opening balance and its modification procedure. I hope that you like this video, and I hope that you subscribe to my channel also, because I will be continuously uploading the related content on my YouTube channel in future as well. So that's all for today. Thanks for being with me. Have a nice day. Take care.